Hey everyone, do you ever think what the most common BGMI or PUBG kills? Or what is your average KD? Or in terms of cricket, why the average of Virat Kohli is greater than other Indian players? So we are going to be exploring mean, median and mode, which are really useful tools to make sense of numbers. Welcome to Pathania Study HQ. Today, we are going to learn about statics and mean, median, mode and relationship between them. So first of all, we are going to discuss about mode. In raw data, the mode or modal value of a distribution is that value of a variable for which the frequency is the maximum. Let us take example of Virat Kohli last 5 scores, that is 78, 60, 100, 60 and 25. So which number is coming most frequently? That is 60. The mode of this data is 60. The number occurring the most is the mode in terms of raw data. So now let us discuss about the mode of a group data. Here is the question. This is a given class and the given frequency. First of all, take a largest value. The largest value in the frequency is 12. So students, जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो हमारा क्लास इंटरवल होगा उसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास. मॉडल क्लास. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी मॉडल क्लास की वैल्यू आ गई 60 to 80. मॉडल क्लास इज 60 to 80. फिर जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के कोरस्पॉन्डिंग आती है उसे बोलते हैं हम F1. सो 12 इज F1. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, वो फ्रीक्वेंसी जो F1 से प्रीवियस है उसे हम बोलेंगे F नोट. प्रिसीडिंग द क्लास F नोट. ओके. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास को जो सक्सीड कर रही है दैट इज नेक्स्ट. तो 12 से नेक्स्ट कौन सी आ रही है? 6. ओके. मैक्सिमम वैल्यू बेटा हो जाएगी हमारी F1, प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स F नोट और सक्सीडिंग वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स F2 एंड मॉडल क्लास इज 60 to 80. फिर स्टूडेंट्स हमें क्लास विड्थ के बारे में पता होना चाहिए. क्लास विड्थ का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोअर लिमिट. तो हमारा क्लास विड्थ का फॉर्मूला हो जाएगा 80 माइनस 60 दैट इज 20. और ये वाली वैल्यू बेटा हमारी होती है लोअर लिमिट. अब हमारे पास लोअर लिमिट भी आ गई है, F1, F नोट, F2 आ गया है, क्लास साइज आ गई है. सारी इस वैल्यू को हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है. तो मोड में बेटा कोई नेक्स्ट एक्स्ट्रा बॉक्स हमारा नहीं बनता, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज L, F1, F नोट, 2F1, F नोट, F2 एंड H. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन. Median is the value of a variable which divides the distribution in two equal parts when arranged in ascending or descending order. So for raw data, first we have to arrange the data in ascending order. Okay. इसको जब स्टूडेंट्स हम अरेंज करेंगे ascending order में तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2, 4, 5, 7, 10. तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा? n+1/2 ऑब्जर्वेशन. हियर n होता है बेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन n इज 5. 1 2 3 4 5. तो 5 + 1 6, 6/2 3. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अवर मीडियन. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5.
So 5 is median of this data. But if the number of terms are even, for example, 3, 5, 1, 8. The number of terms are even. So first step is same, arraying the data in ascending order. That is 1, 3, 5, and 8. So the median in this case is, total number of terms are 4. The median is this, n by 2th observation plus n by 2 plus observation divided by 2. So n is 4, 4 by 2 second term, and 2 plus 1 third term by 2 is our median. The second term is 3, third term is 5 divided by 2. So the answer is 4. In simple language, if we want to find the median of a even number of terms, then simply take the mean of the middlemost two terms. Mean of the middlemost two terms. So here are 4 terms. Middlemost two terms are 3 and 5. The mean of 3 and 5 are 3 plus 5 by 2, 8 by 2, 4. So we get the same answer. Whether you are applying the formula or using a trick, answer is same. So now we will solve a question related to median of a data. So in the question we are given marks and a frequency, and we have to find the median of a data. So in a question related to median, first of all we have to find the cumulative frequency. Cumulative frequency. Students, मोड में हमें कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती, बट इन क्वेश्चन रिलेटेड टू मीडियन वी हैव टू मेक ए नेक्स्ट बॉक्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट टर्म ऐसा आ जाएगी 5. नेक्स्ट टर्म बेटा हम किस तरह निकालेंगे? 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 2 60. ओके, और अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो वो भी 60 ही होगा. ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम आनी चाहिए. हमने किससे निकाला? फर्स्ट टर्म एज सच, फिर उन्हें डायनली प्लस करना आता है. 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 2 60. ओके, अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला आता है L प्लस n बाय 2 माइनस C अपॉन F. इसमें जो हमारा ये टोटल टर्म्स आता है इसे बोलते हैं n. ओके, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, n बाय 2 हमारा कितना आ रहा है? 30. तो अब हमें CF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? n बाय 2 हो गया 60 अपॉन 2 30. अब सबसे पहले हमें निकालनी होती है मॉडल मीडियन क्लास. मीडियन क्लास. सो हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है? ऐसा CF जो 30 से जस्ट ग्रेटर हो. ऐसा CF की वैल्यू जो 30 से जस्ट ग्रेटर हो. तो 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी? 50. सो द मीडियन क्लास इन दिस क्वेश्चन इज 20 to 30. मोड में बेटा जस्ट मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, बट अगर कोई क्वेश्चन मीडियन का है तो पहले CF निकाल के n बाय 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर देखना होता है. तो इन दिस क्वेश्चन द मॉडल क्लास इज 20 to 30. मॉडल क्लास इज 20 to 30. मॉडल क्लास. द लोअर लिमिट इज 20, देयरफॉर L इज 20 इन दिस क्वेश्चन. और क्लास साइज हमारा कितना आ रहा है इसमें? 10. तो H इज 10. फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 30. सो F इज 30. बट CF 50 नहीं आएगा.
CF हमारा क्या होता है, कम्युलेटिव ऑफ ए क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास से प्रिसीडिंग क्लास होती है वो हमारा CF होता है। तो CF इज 20। CF इज 20। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, हमें जस्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। L प्लस n-2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L इज ए लोअर लिमिट of a median class, F is a frequency of a median class, but CF is a cumulative frequency of a class preceding the median class. H is a width of a class and N is a total number of observations. Okay. मीन निकालने के बेटा हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड में बेटा हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सआई। एक्सआई हमारा यहां पे होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 0 10, 10 बाय 2 इज 5, या मिड वैल्यू। सिमिलरली 10 to 20 15, सो ऑन, 10 का गैप है तो 25 35 एंड 45। ओके, नेक्स्ट जस्ट मल्टीप्लाई Fi एंड Xi। Fi एंड Xi की हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो Fi Xi मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 7 इंटू 5 35, 10 इंटू 15 150 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमने Fi Xi का सम निकालना है और Fi का सम निकालना है। Fi Xi का सम हमारे पास आ रहा है 1290 और सिमिलरली Fi का सम हमारे पास आ रहा है 50। सो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास होना होता है समीशन Fi Xi अपॉन समीशन Fi। समीशन Fi Xi का हमारे पास सम आया था 1290, सिमिलरली इसका सम आया था 50, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 25.8। अब हम बात करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड की। अज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें ये फर्स्ट 3 बॉक्स एज सच रहेंगे, CI Fi एंड Xi। नेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आएगा डेविएशन DI का। DI हमारे पास होता है Xi माइनस A। Xi माइनस A। A हम ऐसा नंबर लेट करेंगे, Xi में से कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, वैसे Xi में से कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, बट हम ज्यादा अच्छा रहता है कोई भी मिडिल वाला वैल्यू यूज करो, तो हम यहां पे 25 यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, Xi माइनस 25। Xi इज 5 और 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 10 0 10 एंड 20। सो इन द नेक्स्ट बॉक्स हमें मल्टीप्लाई करना है Fi मल्टीप्लाई DI। Fi मल्टीप्लाई DI। Fi मल्टीप्लाई DI करने में हमारे पास आंसर आ रहा है Fi 7, DI इज माइनस 20, सो द आंसर इज माइनस 140। सिमिलरली इज Fi is 10, DI is minus 10, minus 100, next is 0, next is 8 10 80 and 2 10 200। ये हमारे पास आ गया 280, भी हमारे पास आ गया माइनस 240। सो समीशन Fi DI हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव 40। ओके, अब हमारे पास अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू A प्लस समीशन Fi DI अपॉन समीशन Fi। तो स्टूडेंट्स A हमारे पास यहां पे कितना लेट किया था हमने 25, समीशन Fi DI हमारे पास है 40 और समीशन Fi था हमारे पास 50। ओके, तो कैलकुलेशन करने में 4/8 0.8, सेम आंसर आ रहा है हमारे पास 25.8। सो बेटा आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, सेम आंसर आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, सेम इसी तरह करना है हमने, बस DI की जगह बेटा हमारे पास यहां पर आ जाता है UI।
तो यूआई का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच कितना है, क्लास साइज। क्लास साइज कितने का हर क्वेश्चन में 10 का, तो ये टर्म क्या थी, माइनस 20/10, माइनस 10/10, 0/10, 10/10, इस तरह यहां पे आना था एफ आई यू आई। और फॉर्मूला उसका क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। बट जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसमें स्टेप डेविएशन एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है, बट सबसे अच्छा मेथड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है। सो बेटा अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो उसके बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने समझा मीन, मीडियन, मोड एंड उनके बीच में रिलेशनशिप। तो इसी सीरीज को कंटिन्यूस करते हुए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।